بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر عثمان اور آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنے سیکنڈ ایئر کا تھرڈ لیکچر، جو کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز۔ بیٹا، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم الیکٹرک فیلڈ کو اسٹڈی کیا تھا۔ آئیے دوبارہ الیکٹرک فیلڈ کی ہی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ الیکٹرک فیلڈ لائنز کو مزید ایکسپلین کر سکیں۔ سپوز کریں ہمارے پاس، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کہ ایک چارج ہے جسے ہم سورس چارج کا نام دیں گے اور اسے کیپیٹل کیو سے ڈیزیگنیٹ کر رہے ہیں۔ سپوز یہ پازیٹیو چارج ہے۔ اچھا، اس پازیٹیو چارج کے پاس آپ اپنا ایک اسمال چارج، ویری اسمال چارج، جسے ہم ٹیسٹ چارج کہتے ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ چارج ہم کنونشنلی ہمیشہ 1 کولم پازیٹیو چارج کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو اس وقت کیو ناٹ کے سمبل سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ایکچوئل چارج کیو کے پاس جب میں نے کیو ناٹ اپنا ٹیسٹ چارج رکھا، ٹیسٹ چارج بھی پازیٹیو ہے اور ہمارا سورس چارج بھی اس ایگزامپل میں ہم نے پازیٹیو لیا ہے۔ تو بیٹے، یہ دونوں چارجز سملر نیچر کے ہونے کی وجہ سے، سیم پولیرٹی کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے اور ان کے درمیان کولمز ریپلسو فورس موجود ہوگی، جس کی وجہ سے یہ جو ٹیسٹ چارج ہے یہ موو کرے گا، یہ ریپیل ہوگا اس چارج سے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے سورس چارج سے ہمارا ٹیسٹ چارج اوے موو کرے گا۔ بیٹے، جس ڈائریکشن میں یہ ٹیسٹ چارج موو کرے، ہم اس ڈائریکشن میں ایک لائن لگا لیتے ہیں۔ اس لائن کو آئندہ الیکٹرک فیلڈ لائن کہا کریں گے۔ میں ریپیٹ کرتا چلا جاؤں۔ چلیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس چارج کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اسی ٹیسٹ چارج کو ہمارے سورس چارج کے فیلڈ، یعنی اس کے ویسینٹی کے اندر کسی اور پوائنٹ پہ پلیس کرتے ہیں۔ سپوز یہ لیجیے ہم سیکنڈ پلیس پر آ گئے۔ اب یہ سیکنڈ پلیس پر جیسے ہی میں نے اس چارج کو پلیس کیا، اگین وہی کام ہوا کہ ہمارے ٹیسٹ چارج اور ہمارے سورس چارج کے درمیان ریپلشن ہوئی اور ہمارا ٹیسٹ چارج ہمارے سورس چارج سے اوے موو کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو جو ہی ہمارا ٹیسٹ چارج موو کرے گا تو ہم اس ڈائریکشن میں بھی لائن لگا لیں گے، سو آن۔ یہ پروسیس آپ جاری رکھیں اور ہمارے سورس چارج یعنی ایکچوئل چارج کے گرد ڈفرنٹ پوائنٹس پر ٹیسٹ چارج پلیس کرتے جائیے اور جس ڈائریکشن میں ٹیسٹ چارج موو کرے اس ڈائریکشنز کے اندر آپ لائنز کھینچتے جائیے۔ تو بیٹے، یہ ساری لائنز جو آپ نے سورس چارج کے گرد لگائی ہیں، یعنی یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ کس ڈائریکشن میں ہمارا ٹیسٹ چارج موو کیا ہے، یا یہ ساری لائنز ایکچولی فورس کی ڈائریکشن کو بتا رہی ہیں، کس ڈائریکشن میں کولمز فورس اپلائی ہو رہی تھی۔ تو بیٹے، یہ ساری لائنز الیکٹرک فیلڈ لائنز کہلاتی ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ الیکٹرک فیلڈ کا کانسیپٹ مائیکل فیراڈے نے امیجنری ایک ورچوئل کانسیپٹ پیش کیا تھا، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے ایک چارج سے دوسرے چارج تک فورس ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اسی طرح جب الیکٹرک فیلڈ کا کانسیپٹ ورچوئل ہے تو الیکٹرک فیلڈ لائنز کا کانسیپٹ بھی مائیکل فیراڈے نے ہی پرووائڈ کیا، اور یہ بھی ایک ورچوئل کانسیپٹ ہے۔ مینز ہم حقیقت میں نہ تو ایک چارج کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہی اس چارج کے گرد فیلڈ نظر آتا ہے ہمیں، اور نہ ہی فیلڈ سے نکلنے والی لائنز نظر آتی ہیں، لیکن جسٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ دو چارجز جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر کیسے فورس اپلائی کرتے ہیں، اس فینومینا کو فزیکلی سمجھنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ہر چارج کے گرد فیلڈ موجود ہے اور اس فیلڈ میں سے فیلڈ لائنز نکلتی ہیں، اور یہ فیلڈ لائنز ہی ایک چارج کی دوسرے فیلڈ لائنز دوسرے چارج پر فورس لگاتی ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکیں گے کہ سب سے پہلے یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the visual or graphical representation of electric field in the form of lines are called electric field lines. means ہم نے electric field کو ہی گرافیکلی سمجھانے کے لیے جو لائنز ڈرا کی ہیں ایک چارج کے گرد، وہی لائنز electric field lines ہیں۔ یا آپ یوں کہہ لیجئے the electric field line is the direction of motion of test charge، یعنی جس ڈائریکشن میں ہمارا ٹیسٹ چارج موو کرے، وہ بے شک ریپیل ہو رہا ہو ہمارے سورس چارج سے یا اٹریکٹ ہو رہا ہو۔ ہم یہ سیکنڈ کیس آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ اٹریکٹ کب ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ چارج۔ تو دونوں صورتوں میں جس بھی ڈائریکشن میں ہمارا
टेस्ट चार्ज मूव करेगा, टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन में जो लाइन खींची थी उसी लाइन का नाम बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हम यूं भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ टेस्ट चार्ज मूव ड्यू टू सम कूलम फोर्स। अच्छा बेटे, अब हम लोग इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए दोबारा उसी डायग्राम को जो हमने पहली स्लाइड पे बनाई थी उसी को दोबारा लेते हैं। सपोज ये हमारे पास ऑलरेडी जो पुराना पॉजिटिव क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू चार्ज, और इसके गिर्द ये हमने टेस्ट चार्ज प्लेस किया था। बेटे अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक्चुअली इस वक्त हमारे सोर्स चार्ज के फील्ड में मौजूद है, और इस फील्ड में मौजूद होने की वजह से हमारा सोर्स चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज पर कूलम फोर्स लगा रहा है। तो हम यूं आइंदा कहा करेंगे कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे, उस दो चार्जेस के करीब आने की वजह से हर चार्ज के गिर्द जो फील्ड मौजूद है उस फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। दोबारा बताता हूं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। सपोज एक का नाम कैपिटल क्यू, एक का नाम क्यू नॉट। ये दोनों चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो बेटे इन दोनों चार्जेस के गिर्द इनका अपना अपना फील्ड मौजूद है, और इनके अपने अपने फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहाँ जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैपिटल क्यू चार्ज की शो की जा रही है। इसी तरह ये जो स्मॉल क्यू नॉट चार्ज है इसकी भी फील्ड लाइंस होंगी। तो बेटे जब दो चार्जेस करीब आते हैं तो दो चार्जेस आपस में डायरेक्ट कोलाइड नहीं कर पाते, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि दोनों चार्जेस की फील्ड लाइंस एक दूसरे से निकल के कोलाइड करती हैं या इंटरेक्ट करती हैं, तो कूलम फोर्स अप्लाई होती है। तो एक्चुअली हम यहाँ ये बात क्लियर करते चले जाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही दो चार्जेस की आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से कूलम फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे ट्रांसमिट होती है। इसीलिए तो हम लोगों ने इन फील्ड लाइंस का नाम लाइंस ऑफ फोर्स भी रखा है, क्योंकि इन लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही कूलम फोर्स आगे ट्रांसमिट होती है। अच्छा बेटे, अब हम लोग देखते हैं सबसे बाद के पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम लोग जनरली कुछ डायग्राम्स बना के देखते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और डिफरेंट चार्जेस का फील्ड किस शेप का हो सकता है। तो बेटे हम लोगों ने सपोज किया था कि हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो बेटा अगर हमारा सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव हो तो जब पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव रखा जाएगा तो ये तो डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और टेस्ट चार्ज को अवे मूव करना पड़ेगा सोर्स चार्ज से, और फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड लगानी पड़ेंगी। इसी तरह अगर आपके पास जो गिवन चार्ज यानी सोर्स चार्ज है वो आपका नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव चार्ज के फील्ड में जब आप टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है और आपका सोर्स चार्ज इस एग्जांपल में नेगेटिव है। ये ऑपोजिट पोलैरिटी की वजह से इनके दरमियान कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से टेस्ट चार्ज मूव करेगा टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अब हमारा चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज मूव कर रहा है। इस वजह से हम लोग जो फील्ड लाइंस लगाएंगे वो इनवर्ड लगाएंगे टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। तो बेटे इसलिए आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा हम आउटवर्ड शो करते हैं, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आप इनवर्ड शो करते हैं। पॉजिटिव की आउटवर्ड और नेगेटिव की इनवर्ड। अच्छा बेटे, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों, यानी दो सिमिलर चार्जेस हों, बेशक वो दोनों पॉजिटिव हों या नेगेटिव, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो उनकी फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। इन फील्ड लाइंस को हम एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करेंगे, लेकिन सिर्फ उनकी शेप या उनका पैटर्न देख लीजिए। सिमिलरली अगर आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, जिस कैपेसिटर में होती हैं, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो बेटे इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप या ओरिएंटेशन इस तरह होगी जो हमारी डायग्राम नंबर 3 के अंदर नजर आ रही है।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अब इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटे हमने दो प्रॉपर्टीज अभी स्टडी कर ली थी। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती नजर आती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर होती हुई नजर आती हैं। तो हम यूं लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। नंबर टू, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बेटे किसी चार्ज के गिर्द ज्यादा होंगी, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। या यूं कह लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सॉरी, ना हम रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मींस अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होगी, और अगर एक चार्ज की मैग्नीट्यूड वीक है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होगी। यानी ज्यादा ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की फील्ड लाइंस ज्यादा और लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की फील्ड लाइंस कम हुआ करेंगी। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से निकलती हैं, जिस सरफेस से ओमिट होती हैं, वो बेशक सपोज जो आपने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से अवे निकल रही थी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी, या कोई भी सरफेस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओमिट होती हैं या एंटर होती हैं, उस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल यानी 90 का एंगल बनाती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम वेयर दे ओमिट आर एंटर। अच्छा बेटे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसा कि ये देखिए डायग्राम में नजर आ रहा है हमारे फर्स्ट डायग्राम में, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हों और इक्वी डिस्टेंट हों, तो बेटे ऐसे फील्ड को, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहा करेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड आर कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कन्वर्स, इसका ऑपोजिट कुछ यूं कहा जा सकता है कि अगर ये सेकंड डायग्राम में जैसे देख सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं और नॉन इक्वी स्पेस्ड हैं, यानी कहीं से दो फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है और कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम है। तो बेटे जब ऐसी सिचुएशन हो कि नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन पैरेलल हों, नंबर टू, कर्व्ड हों या अनइक्वली स्पेस्ड हों, तो हमारे इस फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। और इसका एक और नाम भी है जिसको कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द फील्ड लाइंस आर कर्व्ड, नॉन पैरेलल एंड अनइक्वली स्पेस्ड means irregular at every point is called non-uniform electric field or fringing field. डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो ये कि अगर आपके पास कोई सरफेस हो, कोई सपोज आपके पास एक शीट है, पेपर शीट सपोज कर लें, उस पेपर शीट के परपेंडिकुलर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो बेटे जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी हम कहेंगे ये उस चार्ज से आई हैं जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हम यूं कह सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन is proportional to the strength of electric field. मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड स्ट्रांग तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तादाद ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब तादाद ज्यादा गुजरेगी तो हमारे यूनिट एरिया में से तो हमारे पास फील्ड की स्ट्रेंथ को शो किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी सेवंथ वो ये कि जिस जगह पर फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा होती है वहां हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं एक दूसरे से और फील्ड लाइंस की तादाद कम होती है, वहां हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो हमारी यूं हम समराइज कर सकते हैं इस पॉइंट को, सेवंथ को, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक दूसरे के करीब होती हैं तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इट इज वीक, और ये फील्ड वीक होता है कब? when the field lines move apart from each other, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे एक दूसरे से दूर हो जाएं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ने लग जाए तो वहां उस पॉइंट पर, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। अच्छा, एट्थ प्रॉपर्टी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बेटे, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो कैसे? वो इस तरह कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, बेशक स्ट्रेट हो, बेशक कर्व्ड हो, हम यहाँ कर्व्ड के लिए ज्यादा अच्छी एग्जांपल समझेंगे कि हमारे पास सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कर्व्ड नजर आ रही, तो बेटे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, उस लाइन पर जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज ये देखिए ब्लैक कलर की आपको ये कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर आ रही है, और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो ये आप देखिए रेड कलर का एरो टेंजेंट को शो कर रहा है। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो हमारी कर्व्ड सरफेस को जस्ट टच करके गुजर जाए। तो बेटे यहाँ ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये जो रेड कलर का एरो शो हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये हमने कैसे फाइंड की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से हासिल की। चलिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यूज करते हुए किसी और पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड पॉइंट देख लीजिए कि ये हमारे पास मिड में हमें आ गया कि इस पॉइंट यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कर्व्ड, और इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया, और रेड कलर के जो टेंजेंट लाइन है वो बता रही है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो इसी तरह थर्ड पॉइंट पे भी फाइंड किया जा सकता है, और मैंने ये लिख दिया है कि रेड कलर की जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, और जो ब्लैक कलर की लाइन है हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दो चार्जेस के दरमियान ये फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं। तो आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ आ गए हैं। बेटा हमारे पास बेशक सिमिलर चार्जेस हों, बेशक डिफरेंट चार्जेस हों, डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस हों, कभी भी दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को। व्हाई? बिकॉज बेटे रिमाइंड कराता जाऊं, हमने जैसे इस टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में लाइंस ऑफ फोर्स हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बताती हैं कि कोई चार्ज टेस्ट चार्ज को किस डायरेक्शन में धकेल रहा है। अब सपोज कीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, अगर दो चार्जेस हैं तो उनकी दो फील्ड लाइंस होगी। सपोज ये देख लीजिए, मैं पहले इस केस की बात करता हूं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस मेरे पास मौजूद हैं। बेटे इस पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि ब्लू कलर की एरोज के फॉर्म में नजर आ रही हैं, अवे इस चार्ज से अवे निकलती नजर आ रही हैं। दूसरे चार्ज जो हमारा पॉजिटिव है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से अवे जाती हुई नजर आ रही हैं। बाकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि साइड्स पर हैं, बाउंड्री पर, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इन दो चार्जेस के दरमियान में हैं, वो क्या होगा कि ये वाला चार्ज अब फोर्स लगाएगा दूसरे पर और दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा पहले पर। तो इसका मतलब है यहां पर दो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। पहला जिस डायरेक्शन में दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वहां उस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, और जो दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में होगी। तो बेटे हम जानते हैं फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस आपस में ऐड होती हैं
बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स में जैसा हमने पढ़ा था, तो उन दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का एक रिजल्टेंट हासिल होता है। मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हों उन सारी फोर्सेस को ऐड करके कोई एक फोर्स फाइंड कर सकेंगे, यानी सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट कोई एक फोर्स होगी, सिंगल फोर्स, वो नई नेट फोर्स हो कहलाएगी। और उस नेट फोर्स की एक डायरेक्शन हुआ करेगी, एक से ज्यादा डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं, क्योंकि वेक्टर्स की ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वेक्टर एक डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शनल क्वांटिटीज का नाम होता है जिसकी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन हो। ऐसा नहीं होता कि एक वेक्टर की एक से ज्यादा डायरेक्शंस पॉसिबल हो। तो बेटे जरा अंडरस्टैंड कीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स या कोई भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो चार्जेस आपस में फोर्सेस लगाएंगे, दो चार्जेस की दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो बेटे इन दो फोर्सेस के मिलने से एक नई फोर्स बनेगी, और इस नई फोर्स की एक सिंगल रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। तो हम कहेंगे उस सिंगल रिजल्टेंट डायरेक्शन में ये दोनों लाइंस बेंड हो जाएंगी। तो देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दो चार्जेस के दरमियान हैं वो बेंड हो जाती हैं, और वो बेंड होकर दोनों सेम डायरेक्शन में चली जाती हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों लाइंस ऑफ फोर्स ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, और लगाने के बाद एक कॉमन नई रिजल्टेंट डायरेक्शन में ये दोनों चली गई, लेकिन फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। ये हमारी एक्सरसाइज का 5th शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आप कहेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए क्रॉस नहीं करती क्योंकि वो लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और दो लाइंस के मिलने से मतलब दो फोर्सेस मिल रही हैं, और दो फोर्सेस के मिलने से एक रिजल्टेंट फोर्स बन रही है, और एक रिजल्टेंट फोर्स की सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है। अगर अगर ऐसा होता, जब कोई है नहीं, अगर ऐसा होता कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाती, तो इसका मतलब ये होना था कि दो फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन में हैं, यानी जिस पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस क्रॉस करती उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो फोर्सेस की दो डायरेक्शन हो जाती, या रिजल्टेंट फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं सपोज कर लें क्रॉस की शक्ल में, जिस तरह एक्स है, इस तरह दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएं, और जिस पॉइंट पर वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये दो लाइंस मिली हैं, इन दो लाइंस यानी दो फोर्सेस के मिलने से एक रिजल्टेंट फोर्स बननी थी, और एक फोर्स की तो एक डायरेक्शन होनी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर गई हैं, अगर कर जाती, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, तो एक रिजल्टेंट फोर्स की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होगी। तो हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब भी इंटरेक्शन का सामना होगा, दो या दो से ज्यादा फील्ड लाइंस का जब भी इंटरेक्शन का सामना होगा, तो वो सारी फील्ड लाइंस एक कॉमन डायरेक्शन में, जो कि उनकी नेट डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएंगी। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने दोनों चार्जेस को इसी तरह दोबारा एक्सप्लेन किया है। मैं पहले सिर्फ ये बताता जाऊं कि आपकी ये दूसरी डायग्राम के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया गया है, जिसमें पॉजिटिव से फील्ड लाइंस अवे और नेगेटिव की तरफ दिखाई गई हैं। यहां भी आप देख सकते हैं कि वो फील्ड लाइंस जो इन दो चार्जेस के दरमियान मौजूद हैं, वो फील्ड लाइंस इफेक्ट हुई हैं, उनकी डायरेक्शन इफेक्ट हुई है, और वो बेंड हो गई हैं। बाकी फील्ड लाइंस जो साइड्स पर थी उन पे तकरीबन इफेक्ट नहीं पड़ा। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं दोबारा जो इसी फिनोमेना जिससे मतलब बात कर रहे हैं, इसी के मतलब इस न्यू डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। जी तो दोस्तों ये देखिए, हमारे पास ये दो सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इससे भी फील्ड लाइंस अवे निकल रही हैं, इससे भी फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं। अब ये देखिए जो इंटरेस्टिंग एरिया है हमारे पास इंटरेस्ट का, वो ये है कि दोनों फील्ड लाइन, दोनों चार्जेस के दरमियान का पोर्शन, यहां से देखिए इस चार्ज की फील्ड लाइन यूं आई, यानी लाइन ऑफ फोर्स, दूसरे चार्ज ने भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, यहां मिलने के बाद दोनों फील्ड लाइंस ने एक ही कॉमन डायरेक्शन बना ली। तो इसका मतलब है जब दो या दो से ज्यादा फील्ड लाइंस मिलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसलिए मैंने जगह जगह पर ई नेट लिख दिया है, यानी दो फील्ड लाइंस के मिलने से जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी एक डायरेक्शन पॉसिबल है, और उस एक डायरेक्शन में फील्ड लाइन जब जाएंगी तो वो कभी भी दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी।
डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी 10th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज हो, सिंगल चार्ज मौजूद हो बेटा, तो एक सिंगल चार्ज से या तो फील्ड लाइंस अवे निकलती नजर आएंगी या फील्ड लाइंस टूवर्ड्स उस चार्ज की तरफ मूव नजर आएंगी और स्ट्रेट लाइन नजर आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आइसोलेटेड चार्ज आपके पास मौजूद हो और उसके गिर्द सर्कल की शक्ल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। या वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से निकलती हैं और दूसरे चार्ज की तरफ जाती हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं, इफ द चार्ज इज सिंगल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। यानी अगर हमारे पास एक अकेला चार्ज हो तो उस चार्ज से, सपोज अकेला पॉजिटिव चार्ज है, तो उस अकेले पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे जाती हुई मालूम होंगी, अवे जाती हुई मालूम से होगी, मींस चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, किसकी तरफ जाएंगी? इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी क्या होता है बेटे? वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है उसको इन्फिनिटी कहते हैं हम लोग। इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो हमें लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ आ रही हैं। तो इस दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं जो जिसको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। वो ये कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी गोल सर्कल या कोई भी ओवल शेप का कोई भी लूप नहीं बना सकती। वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती एक चार्ज से हैं और एंटर दूसरे में होती हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चार्ज से निकलें और उसी चार्ज में दोबारा वापस आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो लूप्स बनने थे। तो हम कहेंगे एज लाइंस कैन नेवर स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम चार्ज। अच्छा बेटे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से निकलती हैं और नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाती हैं। तो बेटे पॉजिटिव चार्ज प्लेट को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। हाई पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के मुतालिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल जस्ट अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है उसका पोटेंशियल हाई समझा कन्वेंशनली लिया जाता है और नेगेटिव चार्ज प्लेट का पोटेंशियल लो लिया जाता है। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं। और हमारे पास लास्ट ये है कि बेटे दो चार्जेस के दरमियान या कोई भी ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट ना हो, तो बेटे उस रीजन को हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। अब मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका यूज और उसकी फीचर से कुछ वाकिफ हो गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने नजर आ रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। आज के लिए अल्लाह हाफिज।